number 3 of the MCQs. So now we'll be starting with the question number 4. Find the perimeter of the given figure. Now look at the figure, बच्चों. This is the figure. Right? This is the figure. Now it is given. This is 10 centimeter. This is also 10 centimeter. This length is 8.5. 8, sorry. And this is 1.5. Is this clear? This is not 1.5. This is 1.5. This is 10. Is it clear, बच्चों? Yes. So now we have to find the perimeter of this figure. Can we find out the perimeter? देखिए बच्चों, what will be this perimeter? This will be its perimeter. Yes? Yes or no? Because that inner part is combined, so that is not the outer boundary. What is the perimeter? Outer boundary. So what will be the length of this part? What will be the length of? Let I name this figure. A, B, C, F, G, and H. Now what will be the length of HG? Yes, who will tell me? Yes, बच्चों. What will be the length of HG? बेटा देखिए, this total is 10 centimeter and this 1.5 we have reduced. Won't this be 8.5? Sir, done. Right? And what is this much? ये वाली length कितनी थी बेटा? This is 8. So this will be 2 centimeter. ये वाला part 2 centimeter हो जाएगा. So therefore this one is 8 centimeter. So similarly, this length will be 8.5. क्योंकि बच्चे 10 सेंटीमीटर था, तो 10 सेंटीमीटर से हमने 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया. सबको समझ आ रहा है बेटा? बच्चे, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन और नॉट? Yes. हाउ मेनी नो? प्लीज रेज योर हैंड जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है. आई होप देयर मस्ट बी मैनी स्टूडेंट्स. देखिए बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरीमीटर? आउटर बाउंड्री. अब ये जो दो है हमारे पास स्क्वायर्स है, दे आर कोइंसाइडिंग. ये वाला पार्ट जो है इन दोनों का कंबाइन कर रहा है बेटा. ये मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट. अब ये जो पार्ट शेड कर रहा है, दैट इज अ रेक्टेंगल. जो पार्ट शेड कर रहा है बच्चे, वो रेक्टेंगल है. उसकी जो विड्थ है वो 1.5 सेंटीमीटर है और लेंथ 2 सेंटीमीटर है. यस और नो? Yes. एंड दैट रेक्टेंगल इज अफेक्टिंग द 4 साइड्स. कौन कौन सी 4 साइड्स को इफेक्ट कर रहा है बेटा? ये वाली साइड डिक्रीज हो गई. दिस साइड इज डिक्रीज. Similarly, this side is decreased and this side is decreased. ये वाली this and this, they are complete 10 centimeter. Yes or no? Yes. From this side, so we have find out this part only. ये बच्चे 2 centimeter था, तो 10 में से हमने 2 centimeter subtract किया, so we are left with 8 centimeter. Similarly, this is 8, this is 8, this is 8.5 and this is 8.5. So we have two sides which have reduced from 10 centimeter to 8 centimeter,
and two sides have reduced from 10 centimeter to 8.5 centimeter. Is this clear? Is it clear बच्चों? तो हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा बेटा? सारी लेंथ की हमने साइड ऐड कर ली। 10 जो है वो 4 टाइम्स है और 8 जो है वो 2 टाइम्स है एंड 8.5 जो है वो 2 टाइम्स है। तो दिस विल बी द पेरीमीटर। दिस इज क्लियर? Sir, yes. बच्चे इसको ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। प्लीज ऐड ऑल दीज टर्म्स। Sir, done. हाँ जी, हाउ मच? Sir, 73. 73. Everyone got the answer 73? Has everyone got the answer 73? Sir, yes. अच्छा, इन सबको ऐड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 73 और यूनिट जरूर लगानी है इसके साथ। एवरी क्वेश्चन अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड योर। फिर आप कहोगे पेपर तो मैं पूरा करके आया था, नंबर आधे आए हैं, है ना? इट हैपेंस और नॉट? क्या बात, आज मॉर्निंग ब्लूज, मंडे ब्लूज, 2 दिन की छुट्टी के बाद आए हैं, आप पढ़ने का मन नहीं है आज? Why you people are not responding? चलिए बच्चों, मॉड्यूल 2 पे चलते हैं। सेकंड मॉड्यूल 2 फर्स्ट वी हैव असर्शन एंड रीजंस क्वेश्चन। Yes students, assertion reason question number 4. Area of a square is side square. Is this true? Is it true बच्चों? Sir, yes. Yes. Our reason is area is measured in square units. Is this true? Sir, true. Sir, true. Is the right explanation? Of A. Sir, option A is. नहीं बच्चे, my question is the reason correct explanation of assertion? Sir, yes. Who says yes? Please explain me how it is yes. हाँ जी बच्चों, किसने बोला बेटा yes? Please raise your hand and tell me how it is correct. बेटा both the statement are true, but अगर मुझे ये बोला जा रहा है कि एरिया जो है that is represented in square unit, it doesn't mean कि स्क्वायर का एरिया जो है वो साइड स्क्वायर है। When I am talking about area, this is generalized. वो रेक्टेंगल के लिए भी है, वो सर्कल के लिए भी है, that is for triangle, right? तो एरिया की यूनिट जो है वो स्क्वायर यूनिट है, बट स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर है, इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड। दिस इज क्लियर? तो ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। बोथ ए एंड आर ट्रू, but R is not the correct explanation, right? Is it clear? Next we move to the question number 5. To find the cost of painting a wall, we need to find area of the wall. Is this true? Is it true? Sir, yes. Whenever we have to paint a wall, suppose this is the wall I have to paint, तो बच्चे जिसका सरफेस है उस पर पेंट करना है, दैट्स मीन I need to know its area to paint this. So this is true. Region, the amount of region enclosed by a plane closed figure is called its area. Is this true? Yes, this is also true. What is the meaning of this statement? The amount of region, मतलब कितना रीजन एक एरिया में, प्लेन फिगर में इनक्लोज्ड है, दैट इज कॉल्ड इट्स एरिया।
यस और नो? देखो बेटा इसका स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है. लेट्स से दिस इज ए रेक्टेंगल, राइट? इस रेक्टेंगल में कितना एरिया आ रहा है? द एरिया एनक्लोज्ड इन दिस फिगर और द रीजन enclosed in this figure, ये सारा जो रीजन है बेटा इसका, इट इज इट्स एरिया. यस और नो? Sir, yes. So both are true and it is the correct explanation. So therefore option. A. बेटा प्लेन फिगर पता है क्या होती है आप लोगों को? डू यू नो व्हाट इज अ प्लेन फिगर? बच्चे मैंने आपको ना फर्स्ट डे आपको बताई थी वन डायमेंशनल शेप, टू डायमेंशनल बताई थी बेटा. यस और नो? Sir, yes. बेटा जो टू डायमेंशनल शेप्स होती है उनको प्लेन फिगर बोलते हैं. जिनका एक सरफेस होता है, जिनका एरिया होता है, दैट थिंग्स आर नोन एज प्लेन फिगर. इज दिस क्लियर? Sir, yes. Next we come to the question number 6. The length of a rectangle is half and the breadth is double. Then the area of the rectangle obtained remain the same. हाँ जी बच्चों देखते हैं क्वेश्चन. देखिए जरा, आपके पास एक रेक्टेंगल है बेटा, लेंथ L है और ब्रेड्थ इज B. नाउ व्हाट इज इट्स एरिया? व्हाट इज एरिया बेटा? L multiply by B. मल्टीप्लाई बाय. नाउ व्हाट ही सेज, इसकी लेंथ हम हाफ कर दें. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ, मतलब ये वाली लेंथ है ये हाफ हो गई. तो व्हाट इट बिकम्स? विजिबल है बेटा ये लेंथ? आई थिंक नहीं नजर आ रहा है. ये देखिए बेटा, लेंथ को हमने हाफ कर दिया, ये कितनी हो गई? L/2 हो गई बेटा ये. Sir, yes. ब्रेड को डबल कर दिया तो ब्रेड कितनी हो जाएगी? व्हाट विल बी द ब्रेड? 2/B नहीं होगी बेटा, 2B हो जाएगी. राइट? इज दिस क्लियर? Sir, yes. अब इस केस में एरिया कितना आ गया? लेंथ इंटू Breadth 2 by B. कितना आ गया बेटा? इज इट सेम? Sir, yes. तो क्या हो गया बेटा? स्टेटमेंट क्या होगी? व्हाट इज द स्टेटमेंट? ट्रू और फॉल्स? Sir, true. ट्रू हो गई ना बेटा. What he says, if the length is half and breadth is double, the area of rectangle is same. So yes, it is same. Sir, yes. So it is true. Sir, yes. Now reason क्या given है बेटा? Area of rectangle is length into breadth. Reason is correct. Sir, yes. So is it the true explanation? Yes, it is true explanation. So answer will be. A option. बेटा किसी को डाउट है? मुझे लग रहा है कुछ बच्चे क्वेश्चन है कुछ 6B जो लेफ्ट साइड पे बच्चा बैठा है फ्रंट बेंच पे. बेटा टेल मी व्हाट इज द डाउट टू यू? यू वाज रेजिंग योर हैंड. So can you please explain that question? विच क्वेश्चन बेटा? So that assertion. विच क्वेश्चन वी आर डूइंग? प्लीज टेल मी. The third question assertion. थर्ड क्वेश्चन और सिक्स नंबर क्वेश्चन? Sixth number. वी आर डूइंग सिक्स क्वेश्चन बेटा, नॉट द थर्ड क्वेश्चन. Now question is beta, if we have a rectangle and if we half its length, हमने लेंथ को हाफ कर दिया और उसकी ब्रेड्थ को डबल कर दिया, right? Then its area remains same. This is the original rectangle. Yes. Yes. What is its length? L. What is its breadth? B. So what will be its area? Please. L into. What is its area?
L into B. Sir, yes. Now, if we reduce its length to half, सपोज कीजिए लेंथ थी हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ब्रेड थी बेटा 4 सेंटीमीटर। जब लेंथ को अब इसका एरिया कितना आ गया बेटा? व्हाट इज इट्स एरिया? 10 इंटू Sir, 4. कितना बन गया? 40 centimeter. Centimeter by 2. 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर। अब मैंने लेंथ को हाफ कर दिया बेटा। लेंथ कितनी हो गई? 5 हो गई। Sir, yes. व्हाट विल बी ब्रेड? Sir, व्हाट विल बी ब्रेड? sir, it will be double of that. या डबल ऑफ, तो इट इज 4। तो डबल कितना होता है 4 का? 8. 8। तो अब एरिया कितना आ जाएगा बेटा? अगेन इट विल बी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा नीचे वाला नजर नहीं आ रहा। ओके, इट विल बी अगेन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। Sir, yes. इट रिमेन सेम। 2. यही बेटा असर्शन में जो स्टेटमेंट है वो भी यही बोल रही है कि अगर आप लेंथ को डबल हाफ कर दे और ब्रेड्थ को डबल कर दे तो एरिया रिमेन सेम। Sir, yes. यही बोला जा रहा है ना बेटा उसमें। Yes. तो दिस मीन्स दैट असर्शन इज ट्रू। Sir, yes. नाउ एक्सप्लेनेशन क्या गिवन है बेटा? रीजन क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज Length multiplied by breadth. आल्सो। Sir, yes. बेटा वही फार्मूला यूज करके सॉल्व किया है ना। Sir, yes. रीजनिंग इज करेक्ट। Sir, yes. हैव यू अंडरस्टूड? अभी भी कोई डाउट है तो बेटा बताइए जरा। Sir, no. राइट, नाउ कम्स टू द सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बेटा ये फिर आगे शेप्स वाले क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है? इनका एरिया फाइंड आउट करना है। पहले क्या था? इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। हाँ जी बच्चों, देखिए ये 3 सेंटीमीटर है। दिस इज 8, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 3 एंड दिस इज 6। Who will explain me how to find its area? हाँ जी बच्चे, कौन बताएगा? Who will explain me? करना बाद में बेटा, पहले प्लीज टेल मी हाउ टू डू इट। आई नो मैनी ऑफ यू कैन डू इट, पर कौन एक्सप्लेन करेगा? देखिए जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर है तो व्हाट वी हैव टू डू? लिसन केयरफुली एवरीवन, डोंट टॉक। आई कैन सी स्टूडेंट इन 6F। सेंट्रल लाइन में दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक ने ब्लेजर डाला हुआ है, एक स्वेटर वाला है। बोथ ऑफ यू स्टैंड अप, बोथ ऑफ यू स्टैंड अप। 6F, कम टू द माइक। आप भी आ जाइए बच्चे, दोनों को बुलाया मैंने। Yes, sir. बेटा कोई अर्जेंट डिस्कशन चल रहा था आपका? Sorry, sir. क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं बेटा हम? Sir, रीजन के नीचे वाला फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। चलो मुझे एक्सप्लेन कर बेटा, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? शेप बनी हुई है सामने, प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड द एरिया। हाँ जी, प्लीज डू इट बेटा। आता नहीं है सर, नो। बेटा, जब मैं करा रहा हूँ तो आप गप्पे मार रहे हैं तो कैसे आएगा आपको? हाँ जी, दूसरे स्टूडेंट को दे दो माइक बेटा। यू गो बैक एंड गिव द माइक टू द अदर स्टूडेंट। आपको आता है बेटा? सर, नो। बेटा जब समझने का टाइम में आप गप्पे मार रहे हो, अभी बोल रहे हो नहीं आता। इज इट नाइस? सर, नो। चलिए जाइए।
Who will explain me? देखो बेटा कैसे करना है इसको। ये देखिए हमारे पास जो शेप बनी हुई है, कौन सी शेप है बेटा? एफ को उल्टा रखा हुआ है आपने, देख रहे हो? राइट? यस और नो? Sir, yes. What you can do, you can complete this line. ये नीचे तक ले आए बेटा एरिया फाइंड आउट करने के लिए। Sir, yes. Now you have three rectangle. Yes or no? You have these three rectangles. Sir, yes. अब तीनों का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम। Sir, yes. बड़ा सिंपल बन गया ना? देखिए, but for that you know their dimensions. This is 8, this is 3. So length and breadth we know of the rectangle one. Yes? बच्चों yes or no? Sir, yes. Now similarly 3 and 2. Here we also know 3 and 3. We know it. So now we have three rectangles, rather this is a square because 3 and 3. So we have three plane figures and we know their dimensions, so we can find out their area. तो अब जल्दी से मुझे करके बताइए। आप दोनों लोगों को मैं दोबारा बुला रहा हूँ, अभी जिनको मैंने बुलाया था 6F से, आप करके लेके आओ फटाफट क्वेश्चन। If you have not understood, then ask the question. सर जो नीचे ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर, वो सारी लाइन की है या एक रेक्टेंगल की है? ये ना पूरे की है, ये टोटल 6 है, बट इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देखिए ये जो शेप बन रही है, पहले मैं इसका नाम रख देता हूँ। लेट्स से दिस इज ABCD। ये जो रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ हमें 8 गिवन है और ब्रेड्थ 3 गिवन है, तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे यस। अब ये जो सेकंड वाला रेक्टेंगल है, लेट्स से दिस इज EFGH, डायमेंशन हमें गिवन है बेटा 3 और 2, अरे यस। इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे यस। नाउ नीचे वाला जो है ये, लेट्स से PQRS, PQRS, इसकी डायमेंशन भी हमें गिवन है 3 एंड 3। अरे यस। ये 6 जो है इसकी हमें जरूरत नहीं है, बट अगर आप चेक करना चाहो तो दिस मीन्स इज 3 एंड दिस इज आल्सो 3, तो 3 + 3 6, तो ये टोटल 6 आ रहा है। अरे यस। तो हमारा क्रॉस चेक भी हो गया बेटा। ओके सर। राइट? तो प्लीज डू इट नाउ। एनीवन कंप्लीटेड? Sir, yes. बच्चों ने कंप्लीट कर लिया बेटा? प्लीज रेज योर हैंड। 1 2, only 2 hands I can find out। 3, that's it। No one from section BFC, no, none of you have done। Teacher, please check whether they are doing it or not। Teacher present, it's my humble request, please check। Everything has been explained, you just have to calculate and find the answer। If you still have doubt, you can ask the question, students। बच्चे आप लोगों के पास 3 रेक्टेंगल्स बन गए, सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा फिगर का? टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 3, right? Is this clear? Sir, yes. What will be the area of rectangle 1? 24. 24. 8 multiplied by 3 will be 24. Area of rectangle 2? 6. Area of square 3? 9. 9. So what it becomes total? 39 square centimeter. 39 square centimeter, right? So is this clear? Sir, yes. बहुत मुश्किल था बच्चों, Sir, no. ये आप लोगों ने किया नहीं. अगर मुश्किल नहीं था तो why you have not done? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना आप जरा. हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की शेप देखिए. करना वही है बच्चे, आपको ना इसको यू हैव टू ड्रॉ इन सच ए वे कि आपका कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर कंप्लीट हो जाए. This is the figure बच्चों. This is 10. This is 2. This is 12. This is 4. Right? This is 2. 6 and 6. कुछ नहीं करना, ये वाली लाइन मीट करा दो और ये लाइन मीट करा दो. अब हो गया आपका, 3 फिगर्स बन गई बच्चों. 1. Now can you do it? Sir, yes. वेरी सिंपल. अब जल्दी से करके दिखा दो जरा. हाँ जी, हो गया बच्चों. वेरी सिंपल बच्चे, वेरी सिंपल. Sir, yes. हाँ जी, डन. Sir, yes. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? प्लीज रेज योर हैंड जिन बच्चों ने किया. ओनली वन. मुझे तो एक ही बच्चे का हैंड नजर आ रहा है सेक्शन डी से. ओनली वन गर्ल. ऑल अदर आर 6F. आप दोनों को बुलाने वाला हूँ बेटा मैं, जिनको पहले बुलाया था. डू इट फास्ट. हाँ जी, हर्ष फ्रॉम 6C. Harshdeep from 6C. Please come. हाँ जी बेटा, हैव यू डन? हो गया आपका? आवाज नहीं आ रही, आपका माइक ऑन करो पहले. सर यस. बताइए क्या किया बेटा? वो फर्स्ट का आंसर 40. हाँ जी, फर्स्ट का 40. क्या कह रहे हैं? फर्स्ट का 40 आंसर. 40. देन सेकंड वाली फिगर का
Sir, 24. 4। अच्छा चेक कर लेते हैं। और थर्ड का Sir, 36. देखिए बच्चों, प्लीज सिट डाउन बेटा। फर्स्ट फिगर में दिस इज योर लेंथ, दिस इज योर ब्रेथ, तो 10 into 4 40। Sir, 40. नाउ प्लीज चेक हियर, दिस टोटल इज 12 और ये वाला पार्ट जो कितना है 6, तो व्हाट इज लेफ्ट हियर, दिस विल बी 6. 6। तो ये आपको मुझे ठीक नहीं लग रहा। देखिए दिस इज 2, दिस इज आल्सो 2, तो 2 इधर से सब्ट्रैक्ट किया, 2 इधर से सब्ट्रैक्ट किया, तो हाउ मच योर लेफ्ट। और सिंपल सी चीज है, ये बच्चे 6 था, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। इज इट क्लियर। Yes. जब आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया ये, तो ये आपको कितना में बचा यहाँ पे, ये दिस इज 4, 4 into 6 24। यस दिस इज करेक्ट बेटा। So what is the answer? 100 square centimeter. Is this clear? Sir, yes. सब बच्चों को क्लियर है बेटा ये। Sir, yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So next question is, this is the next question, right? So this is 4, this total is 17, this is 11, 2 and 10। कीजिए बच्चों इसको। नाउ कहाँ से मीट कराना है, कैसे करना है, वो आप लोग करेंगे सारा कुछ। हाँ जी हो गया बच्चों। यस you can do it in two ways, right? What you can do, either you can read this, आप इन दोनों को मीट करा दीजिए, राइट, और यू जस्ट नीड टू ड्रॉ दिस लाइन कंप्लीट। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आपके पास तीसरी फिगर आएगी। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, अगर आप ऐसा कर रहे हो बेटा, तो हाउ विल यू डू दिस, दिस इज 17, दिस इज 10, तो इन दैट केस यू कांट फाइंड द डायमेंशन, तो बेटर क्या रहेगा, आप इसको मीट कराइए बेटा, राइट। तो दिस टोटल इज 17, so this will be 17 into 4, Yes. इसको मीट कराइए बच्चे, तो 10 into 2, and what will be this, tell me the dimensions of this rectangle। जी बच्चों बोलिए जरा।
Can you find out the dimension of this figure? हाँ जी बच्चे हो रहे हैं, डायमेंशन इसकी फाइंड आउट। यस टेल मी, देखो कैसे करनी है इसकी डायमेंशन। ये बेटा अच्छा आपके पास ये टोटल कितना है 10 है, राइट, बट यू कांट फाइंड दिस 10 into 2, what will be this length? You won't be able to find it, or will you? ये फाइंड हो जाएगी बेटा, कुछ और गिवन है? there is nothing else is given, right? So this total is 10. ये बिट नहीं गिवन है यहाँ पे, और किसी वे से देखते हैं हम करके इसको। should be some units given, अच्छा यहाँ पे से कुछ मेजरमेंट होना चाहिए था, अदरवाइज यू कांट डू। इसके बिना हम नहीं कर सकते, इसको देख लेते हैं फिर भी द्वारा। तो दिस इज 4, मतलब ये वाला 4 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये बैलेंस कितना बच गया बच्चों? व्हाट विल बी दिस बैलेंस? 5. 5। तो हमारे पास लेंथ तो आ गई, बट ब्रेड हम कैसे निकालें? कैन वी फाइंड आउट द ब्रेड? देयर इज नो मेजरमेंट फॉर ब्रेड, राइट? So we can't find the breadth for this question because there is no measurement given. So we have to either take this measurement or we have to leave this question. Right, bachcho? Yes? Yes. Okay. So you can take anything. Let's say this is 4. So then you can do it. So this will become 5 into बच्चों 20. 5 into 4, not 40। तो इन सबको अब ऐड कर दीजिए, 7 into 8, राइट? Is this clear? Is this clear बच्चों? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम। Yes. राइट, okay, now we come to the question number 4. Figures are given, you are supposed to find out the area of the shaded part by counting the squares. हाँ जी बच्चों, what will be the area of the shaded part by counting the square? बच्चे जब भी ये स्क्वायर काउंट करते हैं ना हम, so what is the rule? If half or more than half, यहाँ पे मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं की मैंने इसकी, अदरवाइज रूल क्या होता है बच्चे? इफ हाफ और मोर देन हाफ देन टेक फुल, राइट? इफ लेस देन हाफ देन नेग्लेक्टेड, राइट? और लीव इट, नेग्लेक्ट और लीव इट, राइट? इसका क्या मतलब हुआ बच्चे? इफ यू सी द फिगर, if you see the first figure, how many squares are there? How many total squares are there? 3, 28. 28। तो बेटा 2 स्क्वायर जो है वो फुल शेडेड है, यस? Yes. Squares are fully shaded, 2 are half shaded and 1 is slightly। So what we'll do, we'll take 2 जो फुल वाले हैं बेटा दोनों को फुल लेंगे, तो that will be 2,
जो हाफ वाले हैं that will also be taken as 1 and 1, that is 2, and we'll neglect the smaller one. Is this clear? Yes. Yes. Have you done this type of question? Nahi na? No. I think we shall leave this type of question, beta, because this type of question doesn't come these days, right? Yes. Now we move to the question number 5. Question number 5. The length of a rectangular field is 60 meter and breadth is 3 by 4 of its length. The area will be. हाँ जी बच्चों, आपको लेंथ गिवन है. What is length? 60 meter. What will be breadth? 3 by 4 of. यही है बच्चे. Yes. So how to find out length? Sorry, how to find out breadth? कैसे breadth find out करेंगे? Please tell me. Who will explain me? What is the meaning of 3 by 4 of length? ऑफ का क्या मतलब होता है बेटा? Multiply. हाँ, बॉड मास भी किया होगा ना आप लोगों ने. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, राइट? So the meaning of this is 3 by 4 multiplied. And what is length? 60. What is your breadth? Breadth कितना आ गया बेटा? 45 meter. So can you find out now area? Can you find out area now, बच्चों? Yes. What will be area? इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से कितना आ रहा है. Sir, 2700. सबका आ गया बच्चे 2700. यस. इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? यूनिट भी तो होती है ना बेटा इसकी कुछ. Sir, 27 square centimeter. तो सेंटीमीटर मीटर है. Meter. हाँ जी, तो आंसर क्या आएगा बेटा? कौन सी ऑप्शन? विच ऑप्शन? 2700 square meter. हाँ जी, तो ऑप्शन बी विल बी द B राइट. option. विल यू ट्राई नाउ द क्वेश्चन नंबर 6? करेंगे बेटा आप लोग ट्राई? Here area is given to you and I think length is given. Area and width is given. So you have to find its length. Yes. What happens, except student? Why you are looking here and there? Please do yourself. Left side, girl student. No talking. बच्चों एरिया इज गिवन, ब्रेड्थ इज गिवन, यू हैव टू फाइंड लेंथ. फार्मूला होता है ना बेटा हमारे पास. एरिया इज इक्वल टू, एरिया की वैल्यू डाल दो, ब्रेड्थ की वैल्यू डाल दो, लेंथ निकाल लीजिए. What it becomes? अब ये सॉल्व करना आता है बेटा? You know how to solve this? अरे आप बोलते नहीं आज कुछ. Yes, no. हाँ जी.
देखिए बेटा, एरिया की वैल्यू गिवन थी 1125 स्क्वायर सेंटीमीटर, width given है 25 सेंटीमीटर, so you have to find length. So what will be length? 1125 divided by Sir, done. 25, डिवाइड कर दिया, 5 5 जा 5 2 जा 5 2 जा, राइट। Sir, option C. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज 45 सेंटीमीटर, Yes. राइट बच्चों। नाउ कम टू द सेवंथ क्वेश्चन। If the area of a rectangle is 16 meter square, then which of the following may not be the possible dimension for rectangle? हाँ जी बच्चों, area is given 16, so which of the following is incorrect? आपको कैसे करना है बेटा ये क्वेश्चन? देखिए फर्स्ट चॉइस में क्या गिवन है? चॉइस ए, लेंथ इज 8, ब्रेड्थ इज, ये कितना बन रहा है बेटा? व्हाट इज एरिया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, कितना आ गया बेटा? C is the D option. Now comes similarly to the B option. Length 16 meter, breadth 1 meter, area is आ रहा है बेटा? C. Now comes to the C option. Length 16 meter, breadth half meter, area कितना आ रहा है? लेंथ इंटू ब्रेड, 16. ये भी 16 आ गया, राइट। नाउ कम्स टू द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है? 8.5 इंटू 2 मीटर, तो हाउ मच दिस कम्स आउट टू बी? इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बच्चों? 17.0. 17 meter square. So which is the incorrect one? The D option. Is this clear? Sir, yes. डाउट बेटा इसमें? Sir, no. अब हम एक क्वेश्चन करें बेटा, टाइम हो गया आपका? Sir, yes. Okay, बच्चों, thank you very much for joining. Thank you all teachers for your cooperation.